Hello students, welcome to the third lecture of nomenclature of different types of organic compounds with different functional groups. हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में देखा, the last molecule was ketone. We have covered molecules alkyl halide, haloarenes, alcohol, phenol, ether, aldehyde, ketone, acid, esters. Okay, now let's move on to the next molecule after ketone. The next molecule after ketone is cyanide. Alkyl cyanide, which have a common general formula representation of RC triple bond N. N has a lone pair where N is sp hybridized, bond angle 180. Okay, now याद रखना, when this cyanide act as a substituent, तो इसका prefix लिखते हो cyano for CN group, and when it act as a functional group of the main organic compound, then you write down a suffix nitrile. Okay, याद रखने का, ट्रिपल बॉन्ड N represents nitrile. Remember this. Okay, a triple bond N को nitrile से represent करते हैं. Okay, now common name. Now what is common name of this compound? Now common name of this compound will be, in common name you consider RCN, you write down the name of alkyl, so alkyl, and this CN will be cyanide. The entire CN will be called as cyanide. So common name is alkyl cyanide. The second common name is, you write down common name of acid with respect to the number of carbon atom, count total carbon atom, and replace IC acid with O nitrile. Okay, so that will be the common name. तो common name दो हो सकते हैं, alkyl cyanide, और you write down common of the acid and replace it by O nitrile. अच्छा, IUPAC कैसा लिखना है? In IUPAC of the cyanide, this entire part will be written as alkane, counting the number of carbon atom. मतलब आपको ये cyanide का भी कार्बन अभी काउंट करना पड़ेगा. कॉमन नेम में cyanide का कार्बन नहीं है. CN is itself written as cyanide and R is alkyl, separate है, alkyl cyanide. But in case of alkane, you count the carbon attached to nitrogen. Even this carbon is in accountability. तो entire part of the carbon, you write down the name of the alkane. अगर दो कार्बन है तो ethane, one carbon तो methane. And this triple bond N is called as nitrile. इसमें alkane का E रखने का, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में कोई वॉवल से स्टार्ट नहीं होता है. N is not a vowel, therefore the vowel E is left. What I said कि सफिक्स क्या यूज करना है इसका? नाइट्राइल, फंक्शनल ग्रुप के लिए, ट्रिपल बॉन्ड N. लेट्स सी सम एग्जांपल इन दिस. सबसे पहला एग्जांपल मैं देखता हूँ, HCN. नो HCN मैंने R की जगह पे H ले लिया है. सबसे सिंपल साइनाइड, इसका कॉमन नेम क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल HCN इज हाइड्रोजन, तो दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन. अल्काइल की जगह पे हाइड्रोजन डाला, तो हाइड्रोजन, एंड देन यू हैव साइनाइड. अच्छा, इसका दूसरा कॉमन नेम क्या हो सकता है? तो यू राइट डाउन कॉमन नेम ऑफ द एसिड. तो एक कार्बन का कौन सा एसिड होता है कॉमन नेम वाला? फॉर्मिक एसिड. तो आई राइट डाउन फॉर्मिक एसिड. यू रिप्लेस IC एसिड, द वर्ड IC एसिड इज रिप्लेस्ड बाय द वर्ड O nitrile, therefore it is called as formonitrile. तो HCN is called as हाइड्रोजन साइनाइड, और हाइड्रोसाइनिक एसिड भी बोलते हैं कोई कोई जगह पे. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रो, एक और नाम लिख देता हूँ उसका कॉमन नेम में, हाइड्रोसाइनिक एसिड. ठीक है, और हाइड्रोजन साइनाइड, या राइट डाउन कॉमन ऑफ द एसिड रिस्पेक्ट टू द कार्बन एटम. एक कार्बन है तो फॉर्मिक एसिड, रिप्लेस IC एसिड विद द वर्ड नाइट्राइल, सो फॉर्मोनाइट्राइल हो गया. अच्छा, अब इसका IUPAC लिखना है. तो IUPAC सबसे सिंपल होता है, यू काउंट टोटल कार्बन. तो टोटल कार्बन इज 1, तो 1 कार्बन का अल्केन, आपको ये C भी लेना है. तो 1 कार्बन का अल्केन क्या हो गया? मीथेन. और आगे सिर्फ क्या लगाना है इसके? मीथेन. E सस्टेन करने का, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के पास एक वॉवल होना चाहिए. तो फंक्शनल ग्रुप आपका नाइट्राइल है. सो मीथेन नाइट्राइल. Okay, remember triple bond N
is the nitrile group in IUPAC. फ़र्क याद रखना, दोनों में डिफरेंस याद रखना. Let's consider the second molecule, CH3C triple bond N. Now I substitute a methyl group in place of R. So common name will be alkyl cyanide. Alkyl is the R, so your R is methyl, so you can write down as methyl cyanide. Okay. Now what can be the another common name? So another common name comes from an acid. Do you remember 2-carbon acid? Common name is acetic acid. So you write down acetic acid. Replace the word IC acid with O nitrile. तो ये क्या हो गया? Acetonitrile. मतलब methyl cyanide is also called as acetonitrile. Now IUPAC is very simple. You count total carbon, it is 2. So 2-carbon alkane is ethane nitrile. Okay, very simple बात. बराबर उसमें एक बार नोटिस करो. Now third example लेता हूँ. For example CH3 CH2 C triple bond N. Now I have introduced ethyl group with cyanide. So if I want to write down a common name, this is ethyl. So this is ethyl. CH3 CH2 is ethyl. What is remaining? Cyanide. CYANIDE, cyanide. Or 3-carbon. Common name of 3-carbon acid is propionic acid. So it is propionic acid. You replace the word IC acid with the word O nitrile. So propiononitrile is the word for common name. Now IUPAC लिखना है, तो IUPAC में count total carbon atom 1 2 3. So 3-carbon alkane. 3-carbon alkane is propane, and then you write down nitrile. So PROPANE, propane nitrile. Okay. Fourth molecule. Suppose the molecule is C6H5CN. So if I want to write down common name, this is alkyl. This alkyl is phenyl, so it is called as phenyl, and CN is called as cyanide. Okay. Or if you remember C6H5C resemble benzo group, क्योंकि ये आ रहा है बेंजोइक एसिड से. मतलब इसका अगर मैं एसिड बनाऊंगा तो C6H5C डबल बॉन्ड OOH है, बेंजोइक एसिड. ठीक है. सो इफ आई वांट टू राइट डाउन इट्स नेम, तो इसका दूसरा नाम हो सकता है बेंजो नाइट्राइल. आई रिप्लेस benzoic acid, I replace IC acid, okay, with the word nitrile, क्योंकि O already है. तो benzonitrile. Even the IUPAC, even in IUPAC for this compound you can write down benzonitrile लिख सकते हैं हम लोग. ओके. और फिनाइल और बेंजोनाइट्राइल लिख सकते हो, या तो फिर दिस इज CN ग्रुप. एक कार्बन का अल्केन इज मीथेन. ओके, बराबर देखना. एक कार्बन का अल्केन इज मीथेन. दिस इज फिनाइल ग्रुप. तो आप IUPAC में दूसरा नाम क्या लिख सकते हो? फिनाइल. एक कार्बन का अल्केन इज मीथेन. मीथेन के साथ में कौन है? नाइट्राइल. सो इट कैन बी कॉल्ड एज फिनाइल मीथेन नाइट्राइल. IUPAC में ये भी लिख सकते हैं. सो मैं इसके दोनों नाम IUPAC कैन राइट इट हियर सो दैट यू कैन व्यू इट प्रॉपरली. कि IUPAC नेम, it can be called as benzonitrile or phenyl methane nitrile. This is phenyl, one carbon का alkane is methane and triple bond N is nitrile. Make it very simple. So this was the IUPAC and common name of alkyl cyanide. अब इसमें एक compound लेता हूँ मैं only for the IUPAC. आई होप आपने पॉज करके इसको रब कर ली, नोट डाउन एवरीथिंग. पॉज करके नोट डाउन एवरीथिंग. ओके. नाउ आई विल टेक वन मोर एग्जांपल. सपोज मुझे सिर्फ IUPAC लिखना है. दिस एग्जांपल
triple bond N. Okay, now I put a OH group, bromine यहाँ पर एक डाल देता हूँ, and here there is a ethyl group. Okay, plus यहाँ पर आ जाएगा I increase the chain. Here I introduce a double bond O, oxo. ठीक है, ketonic group, a double bond O. So now we have cyanide, we have OH, we have bromine and C double bond O. तो alcohol, ketone, C double bond is ketone and cyanide. इसमें से highest priority किसका है? Cyanide का है. तो cyanide will rule the entire compound. This carbon of cyanide, this carbon here, the carbon of cyanide by default gets the first position. Terminal भी है. This is 2, 3, 4, 5, 6, 7. Longest chain. थर्ड पे हाइड्रोक्सी स्टार्ट्स विद H, फोर्थ पे ब्रोमीन स्टार्ट्स विद B एंड फिफ्थ पे याद होगा C डबल बॉन्ड O. द प्रीफिक्स नेम इज ऑक्सो और कीटो, तो ऑक्सो स्टार्ट्स विद O. ओके, नाउ अल्फाबेटिकली B कम फर्स्ट, सो वी राइट डाउन फॉर IUPAC 4 ब्रोमो, देन H आ जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी, 5 ऑक्सो. ओके, एंड लास्ट में oh sorry I forgot one, there is one more, 2 पे इथाइल है ET. सो पहले E आ जाएगा, 4 ब्रोमो, 2 इथाइल, देन हाइफन 3 हाइफन हाइड्रोक्सी, 5 ऑक्सो, हेप्टेन, 6 कार्बन का चेन इज हेप्टेन नाइट्राइल. ओके, प्लीज कॉपी इट डाउन, पॉज करो और कॉपी कर लो. ऑल अबाउट साइनाइड. Okay, let's start with the next molecule of discussion. The next molecule is alkyl isocyanide. Alkyl isocyanide is represented by a general formula RN ट्रिपल बॉन्ड C, जिसमें एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है जो नाइट्रोजन डोनेट करता है अपना लोन पेयर. दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड. याद रखने का, नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड में 1 एटम विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन. ओके, एक इलेक्ट्रॉन B का है, एक इलेक्ट्रॉन A का है, दोनों शेयर कर रहे हैं आपस में. दे आर शेयरिंग दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्मिंग अ कोवैलेंट बॉन्ड. बट इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, अ सिंगल एटम, सपोज A ने ही अपने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया B को, B ने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिया है, द एंटायर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय अ सिंगल एटम. नॉर्मल कोवैलेंट में 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम. हियर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय सिंगल एटम बट शेयर्ड बिटवीन 2. इसके लिए इस बॉन्ड को हम लोग A एरो B लिखते हैं और इस बॉन्ड को A बॉन्ड B लिखते हैं. Why this arrow? This arrow represent कि a pair of electron is donated by A and accepted by B and it is been shared. So this is also a covalent bond, this is also a covalent bond, but this is arrow represent it is a coordinate covalent bond where A is a donor and B is a acceptor atom, and normal bond represent a normal covalent bond. So this is coordinate covalent bond. याद रखने का, coordinate covalent bond. ठीक है, where a pair of electron is donated by single atom and shared between 2. सेम यहीं पर ही हो रहा है. नाइट्रोजन अपना एक लोन पेयर डोनेट करता है कार्बन को, तो 2 bonds are normal and 1 bond is coordinate. इसके लिए N पे प्लस आता है और C पे माइनस चार्ज आता है because it has been accepting. C is accepting up this pair of electron from nitrogen. A coordinate covalent bond होता है NC में. NC is isocyanide. Okay. Now remember, if it is used as a substituent, अगर ये आपको substituent दिखा तो इसका prefix word हो जाएगा isocyano. Okay. आइजोसाइनो. और अगर हम लोग इसका सफिक्स यूज़ कर रहे तो इट इज़ आइजोनाइट्राइल. साइनाइड में सिर्फ नाइट्राइल था, इसमें आइजोनाइट्राइल हो जाएगा. साइनाइड में सिर्फ साइनो था, इसमें आइजोसाइनो होगा. ओके, और याद रखने का कि इट इज़ कॉल्ड एज आइजोनाइट्राइल. और रिमेंबर वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि CN ग्रुप को है ना, CN ग्रुप इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बोनाइट्राइल. कार्बोनाइट्राइल बोलते हैं पूरे CN को,
और ट्रिपल बॉन्ड एन को नाइट्राइल बोलते हैं. ओके, सी ट्रिपल बॉन्ड एन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज साइनाइड और कार्बोनाइट्राइल. एंड सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड एन होगा तो नाइट्राइल लिख सकते हैं. ओके, कार्बोनाइट्राइल भी बोल सकते हैं. बट फिलहाल हम लोग बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट आइसोसाइनाइड. सो कॉमन नेम आइसोसाइनाइड क्या है? RNC है. तो इसमें R इज अल्काइल, NC स्टैंड्स फॉर आइसोसाइनाइड. ओके, नाउ इफ आई वांट टू राइट डाउन IUPAC, तो IUPAC में RNC, दिस विल बी योर अल्केन. सिर्फ यही काउंट करने का, यही कार्बन, बिकॉज NC विल बी कॉल्ड एज आइसोनाइट्राइल. ओके, तो आइसोनाइट्राइल हो जाएगा, रिमेंबर दैट. और याद रखो, NC ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बलामाइन ग्रुप. तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्केन कार्बलामाइन, which has very offensive pungent odor, very offensive and pungent odor. It produces very pungent odor. अल्केन कार्बलामाइन. NC को हम लोग आइसोनाइट्राइल भी बोलते हैं, आइसोसाइनाइड भी बोलते हैं और कार्बलामाइन भी बोलते हैं. ठीक है, यू हैव टू मेक नोट ऑफ ऑल दिस पॉइंट. कार्बलामाइन इज अनदर वर्ड फॉर NC. और फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट डाउन CH3NC, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा CH3 इज अल्काइल, तो दिस अल्काइल इज मीथाइल आइसोसाइनाइड. IUPAC लिखना है मुझे, तो एक कार्बन है, दिस इज मीथेन आइसोनाइट्राइल और मीथेन कार्बलामाइन. रिमेंबर दैट. ठीक है, सो दिस इज कार्बलामाइन. अब अभी अब C2H5 होगा तो इथाइल आइसोसाइनाइड या इथेन कार्बलामाइन एंड लाइक दैट. सो नोट डाउन अबाउट कार्बलामाइन, दैट इज आइसोसाइनाइड ग्रुप. Okay guys, then I write down an important point. Remember, in case of, not in case of alkyl isocyanide, I rub this out. In case of cyanides, remember, cyanide, I give two molecules. The first molecule is CH2C triple bond N attached to CH2C triple bond N. ओके, इसका IUPAC लिखना है. और दूसरा मॉलिक्यूल है, एग्जाम में भी आ चुका है, CH2CN CHCN CH2CN. Now in this case you have two cyanide groups. So for IUPAC 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन हो गया. So I'll write down pentane 1,5 dinitrile. ओके, फर्स्ट पे नाइट्राइल है, फिफ्थ पे नाइट्राइल है. सो डाइनाइट्राइल और वॉवल तो आना ही चाहिए, आपको पता है पेंटेन का. Now what about this compound? For this compound a special name called as मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि CN is also called as carbonitrile. So इसको दूसरा नाम IUPAC में how will you name it? You can name it as 1 2 3 प्रोपेन. 3 कार्बन का चेन प्रोपेन. मैंने साइनाइड को लिया ही नहीं. 1 2 3, तो इट कैन बी नेम्ड एज प्रोपेन 1, 2, 3 try. CN is called as carbonitrile. देखो, कार्बो स्टैंड्स फॉर C, नाइट्राइल स्टैंड्स फॉर N. क्योंकि मैंने यहाँ पर C को कंसिडरेशन में लिया ही नहीं. अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ 1 2 3 4 5, तो ये एक साइनो बन जाएगा. फिर मतलब 3 साइनो देन पेंटेन 1,5 पेंटेन 1,5 डाइनाइट्राइल. ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं इसको, बट दिस हैज गिवन अ स्पेशल नेम. ओके, बट याद रखना वी कैन ऑल्सो नेम इट एज
1 2 3 4 5, 3 पे क्या आ गया साइनो, मतलब एक साइनाइड को हम लोग ने सब्सटीट्यूट ले लिया तो साइनो, तो 3 साइनो। अब टोटल 5 कार्बन का चेन है, तो पेंटेन 1,5 डाई नाइट्राइल। अब नाइट्राइल, अब डाई नाइट्राइल, नाइट्राइल कौन सा ग्रुप हो गया, सिर्फ एन ग्रुप, मैंने सिर्फ एन को लिया, तो ये 1 पे अटैच है ट्रिपल बॉन्ड एन, 5 पे अटैच है ट्रिपल बॉन्ड एन, और साइनो को सब्स्टिट्यूट बनाया। सो या तो आप इसको ऐसा नेम करो जहां पर आपने साइनाइड को कंसिडरेशन में लिया ही नहीं, 1 2 3, 1 पे कार्बोनाइट्राइल, सेकेंड पे कार्बोनाइट्राइल, थर्ड पे कार्बोनाइट्राइल, ओके, थर्ड पे कार्बोनाइट्राइल, और यू काउंट 1 2 3 4 5 एंड टेक 1 साइनाइड एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ये दोनों पॉसिबिलिटी साइनाइड में हो सकती है, रिमेंबर दैट इन अ नेमिंग सिस्टम। ओके, पॉज कर लो, कॉपी कर लो, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट मॉलिक्यूल। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मॉलिक्यूल। Now the next molecule of discussion is acid amide. Acid amide has a general formula, the representation of R C double bond O NH2 group, amido group, C double bond O NH2 group, amide group भी बोल सकते हैं, CONH2 is a amido group or amide group, okay, CONH2, amido amide group. Now if this CONH2 act as a substituent, तो उसका प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा, उसका प्रीफिक्स होगा कार्बामोइल, याद रखने का प्रीफिक्स, ओके, कार्बामोइल, इट इज रिटन एज CARBAMOIL, कार्बामोइल. Now if this CONH2 act as a functional group, the main functional group of the carbon chain, then the suffix will be alkane का E is replaced by the word amide. Example देखते हैं, पहले common name देखते हैं कैसा लिखते हैं. How to write common name of this acid amide? In case of acid amide, the common name लिखने के लिए you write down common name of acid by counting the carbon atom and replace IC acid with the word amide. Simple, क्योंकि ये amide है और ये एसिड का ही डेरिवेटिव है. क्यों एसिड का डेरिवेटिव है? एसिड किससे बना है? RCOOH. अगर आप इसका OH निकाल के NH2 डाल दोगे, अमीनो ग्रुप डाल दोगे, अमीनो, NH2 इज अमीनो ग्रुप, तो CONH2 बिकम्स एन अमाइड. तो मतलब ये एसिड का ही डेरिवेटिव है. इसके लिए इसका कॉमन नेम एसिड से लिखते हैं, साइनाइड का कॉमन नेम एसिड से लिखते हैं, अल्डिहाइड का कॉमन नेम एसिड से लिखते हैं, क्योंकि अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन पे एसिड मिलता है. तो अल्डिहाइड हो गया, साइनाइड हो गया, एसिड, एस्टर, एसिड क्लोराइड, ये सब एसिड के डेरिवेटिव है. इसके लिए इनके कॉमन नेम में कॉमन ऑफ एसिड यूज करने का, बट आईसी एसिड रिप्लेस करो दूसरे वर्ड से, जैसा अमाइड में आपने अमाइड से रिप्लेस किया है. ओके, एंड व्हाट इज IUPAC? वेरी सिंपल. इन केस ऑफ IUPAC इट इज RC double bond O NH2. यू काउंट टोटल कार्बन एटम, दैट विल बी योर अल्केन. अल्केन का E इज रिप्लेस बाय द वर्ड अमाइड. देखो एक वॉवल निकाला और एक वर्ड ऐड किया जो A से स्टार्ट होता है, दैट इज ऑल्सो अ वॉवल. सो रिमूव अ वॉवल एंड इंट्रोड्यूस अ वर्ड विद अ वॉवल, क्योंकि दो वॉवल साथ में नहीं होते और बिना वॉवल के फंक्शनल ग्रुप नहीं होता. नाउ दिस विल बी कॉल्ड एज अल्केना अमाइड. और अमाइड के कार्बन को फर्स्ट पोजीशन नहीं मिलेगा अगर वो मेन ग्रुप में है. वाई? बिकॉज वो टर्मिनल पे रहेगा CONH2, लाइक इन केस ऑफ साइनाइड, लाइक इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, लाइक इन केस ऑफ COCl, इवन CONH2 इज एट द टर्मिनल. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल R की जगह पे इफ आई राइट डाउन HC double bond O NH2. अब इसका कॉमन नेम लिखना है, IUPAC लिखना है. तो कॉमन नेम में क्या करना चाहिए? कॉमन नेम ऑफ एसिड. अब एक ही कार्बन है इसमें, तो एक कार्बन वाला कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड. आपने IC एसिड वर्ड निकाल के क्या डालना है उसकी जगह पे? अमाइड. सो इट बिकम्स फॉर्मा अमाइड. अब फॉर्मा अमाइड समझने के लिए याद रखने का, दिस इज फॉर्मिक एसिड HCOH. यू रिप्लेस OH ऑफ फॉर्मिक एसिड विद अ NH2 ग्रुप, तो इट बिकम्स अ फॉर्मा अमाइड. सिंपल. अच्छा, IUPAC काउंट नंबर ऑफ कार्बन एटम, इट इज ओनली 1 कार्बन. तो 1 कार्बन के लिए आप अल्केन कौन सा लिखोगे? मीथेन. मीथेन का E किससे रिप्लेस कर दोगे? वर्ड अमाइड. तो मीथेन अमाइड हो गया. ओके, नाउ सपोज सेकेंड एग्जाम्पल लिया, CH3C double bond O NH2.
नाउ योर इट हैज 2 कार्बन, तो कॉमन नेम ऑफ द एसिड विथ 2 कार्बन इज एसिटिक एसिड। तो आईसी एसिड किससे वर्ड रिप्लेस करना है, अमाइड से, तो इट बिकम्स एसिटामाइड। आईयूपीएसी लिखना है, तो आईयूपीएसी में काउंट कार्बन दे रहा, हाउ मेनी कार्बन एटम 2, सो 2 कार्बन का अल्केन कौन सा हुआ, इथेन। इथेन का ई किससे रिप्लेस करो, अमाइड, इथेनामाइड। ओके, नाउ थर्ड मॉलिक्यूल, फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट डाउन C6H5, C डबल बॉन्ड ओ NH2, तो यहां पर मैंने एक फिनाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया इसके अंदर। मैंने इंट्रोड्यूस अ फिनाइल ग्रुप योर, अब इसका नाम हो जाएगा कॉमन नेम में, तो कॉमन नेम में कौन से एसिड से आ रहा है, देखो यहाँ पर OH लिखा तो मतलब बेंजोइक एसिड है। वापस NH2 डाल देता हूँ, तो बेंजोइक एसिड का बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। यहाँ पर अब OIC एसिड पूरा निकाल के आप डालोगे अमाइड, तो बेंजामाइड बन गया ये। सो दिस बिकम्स अ बेंजामाइड, ठीक है। IUPAC में आप यूज लिख कर सकते हो, IUPAC में कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज बेंजामाइड या बेंजीनामाइड। देखो ओ निकाला साथ में, बिकॉज ओ और ए साथ में नहीं हो सकते, 2 वॉवल साथ में नहीं होगी ना फंक्शनल ग्रुप के लिए, इसके लिए इसमें ओ निकालना पड़ा, बाकी सब में IC एसिड निकालना पड़ा। ओके, सो वी हैव अमाइड कॉमन नेम ऑफ एसिड एंड IUPAC। प्लीज नोट डाउन, पॉज कर लो और नोट डाउन कर लो। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट मॉलिक्यूल। The next molecule is RCOCl। पहले मैं इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखता हूं समझाने के लिए। C डबल बॉन्ड O Cl इज कॉल्ड एज एसिड क्लोराइड, क्योंकि RCOOH के OH की जगह पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, आपने OH रिप्लेस किया क्लोरीन से, तो इट इज एसिड क्लोराइड। ओके, अगर मैं यहाँ पर Cl की जगह Br डाल दूंगा तो आप बोलेंगे सर ये एसिड ब्रोमाइड हो गया, I डाल दिया तो एसिड आयोडाइड हो गया। इसके लिए अगर मैं यहाँ पर X डालूंगा तो ये एसिड हलाइड बन जाएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट एसिड हलाइड। इट कैन बी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नाउ रिमेंबर, अगर मैंने इसकी जगह पे Cl ग्रुप ले लिया, क्लोरीन, ज़्यादातर आपको क्लोरीन ग्रुप ही दिखेगा, अगर क्लोरीन ग्रुप लिया तो दिस COCl इज कॉल्ड एज, इफ आई राइट डाउन COX ग्रुप, अगर ये आपका सब्स्टिट्यूएंट बनता है किसी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में तो आपको इसका प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा। अब वो प्रीफिक्स के लिए ही मैं आपको समझा रहा हूं कि इफ यू टेक C डबल बॉन्ड O Cl तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज क्लोरोकार्बोनिल, क्लोरोकार्बोनिल। ओके, इसको क्लोरोकार्बोनिल भी बोलते हैं बिकॉज दिस इज अ क्लोरीन ग्रुप एंड C डबल बॉन्ड O इज कॉल्ड एज कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोरोफॉर्माइल, तो क्लोरोकार्बोनिल बोलो या क्लोरोफॉर्माइल बोलो। अगर मैंने Br डाल दिया तो ब्रोमोकार्बोनिल या ब्रोमोफॉर्माइल, आयोडीन डाला तो आयोडोकार्बोनिल या आयोडोफॉर्माइल, तो आयोडो, ब्रोमो, क्लोरो ये सब क्या होते हैं, हेलो। सो दिस इज हेलो कार्बोनिल और हैलो फॉर्माइल, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल, अगर ये C डबल बॉन्ड O Cl है तो आप लिखोगे क्लोरोकार्बोनिल और क्लोरोफॉर्माइल इफ इट एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट। अगर ये आपका कंपाउंड सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है तो आप इसके बारे में ऐसा लिख सकते हैं। ओके, now if it is acting as main functional group then you write down suffix, so suffix for this compound will be OYL, OYL halide। मतलब अगर क्लोरीन है तो if it is C double bond O Cl तो it will be called as OYL chloride। okay, this suffix you will use if it is acting as a parent chain। अब कॉमन नेम और
IUPAC से समझ में आ जाए। अगर मैंने कॉमन नेम लिखना है तो अगेन ये एसिड का डेरिवेटिव है, तो यू राइट डाउन कॉमन नेम ऑफ एसिड एंड रिप्लेस वर्ड IC एसिड with the word YL halide. ओके, YL halide मैं सिखाऊंगा। IUPAC वेरी सिंपल, यू काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन दिस। तो ये कार्बन काउंट करो, ये कार्बन के हिसाब से ये अल्केन हो जाएगा। अल्केन का आप ई रिप्लेस करो किससे? OYL हालाइड से, जो मैंने लिखा इसका सफिक्स, तो ये हो जाएगा अल्केनोविल हालाइड। अगर क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, जो भी है। एग्जाम्पल, सपोज मैंने R की जगह डाल दिया या HOCl डाल दिया। चलो बहुत सिंपल एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं HOCl। अब आप बोलोगे सर इसका कॉमन नेम लिखना है, मैंने लिखो कॉमन नेम ऑफ एसिड लिखो। तो एक कार्बन वाला एसिड कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड। अब ये वर्ड रिप्लेस कर दो IC एसिड विद द वर्ड YL हालाइड, तो YL डाल दो। अब हालाइड कौन सा है? क्लोरीन है, तो YL क्लोराइड। मतलब आपने क्या किया? एसिडिक एसिड का IC, फॉर्मिक एसिड का IC एसिड निकाल दिया, उसकी जगह पे YL हालाइड डाला। हालाइड क्लोरीन था तो ये फॉर्माइल क्लोराइड हो गया। नाउ इफ आई वांट टू राइट डाउन IUPAC, तो IUPAC भी सिंपल है। IUPAC में काउंट टोटल कार्बन इज 1, तो 1 कार्बन इज मीथेन। मीथेन का ई रिप्लेस करो, मतलब वॉवल रिप्लेस करो विद द वर्ड स्टार्ट्स विद वॉवल OYL, तो ये हो गया मीथेनोविल। हालाइड कौन सा हालाइड है? क्लोराइड, सो मीथेनोविल क्लोराइड। ठीक है, तो बेसिकली दे आर अल्केनोविल हालाइड। अब समझो मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया इसमें, सेकेंड एग्जाम्पल। इन प्लेस ऑफ H आई राइट डाउन CH3C डबल बॉन्ड OCl। अब मैं आपको पूछूंगा इसका कॉमन नेम क्या है, तो आप बोलेंगे सर 2 कार्बन वाला कॉमन नेम एसिड होता है, एसिटिक एसिड। तो IC एसिड वर्ड को आप रिप्लेस करोगे किससे? YL हालाइड। कौन सा हालाइड है? क्लोराइड, तो एसिटाइल क्लोराइड। और अगर मुझे इसका IUPAC लिखना है, तो IUPAC के अंदर कम ऑन 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का अल्केन कौन सा होता है? ईथेन। ईथेन का ई आप किससे रिप्लेस करोगे? OYL क्लोराइड, सो इथेनोविल क्लोराइड। ठीक है, सो रिमेंबर दिस। ओके, सिमिलरली CCH5 लिया तो वो क्या हो जाएगा? बेंजोइल क्लोराइड, बिकॉज इट इज मेड फ्रॉम बेंजोइक एसिड, सो बेंजाइल क्लोराइड बोल सकते हो आप, और बेंजानोविल क्लोराइड बोल सकते हो इन केस ऑफ CCH5COCl। दिस इज ऑल अबाउट एसिड हालाइड। रिमेंबर एसिड हालाइड का सिस्टम कैसा वर्क करता है? COCl, COBr होगा। सपोज एक और एक ग्रुप ले लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल लेता हूँ CH3CH2C डबल बॉन्ड OBr ले लिया। अब इसका कॉमन नेम लिखना है, तो 3 कार्बन वाला एसिड कौन सा होता है? प्रोपियोनिक एसिड होता है। अब उसका IC एसिड निकाल दो, उसकी जगह पे डालो YL हालाइड, सो प्रोपियोनिल। हालाइड कौन सा है? ब्रोमाइड, सो प्रोपियोनिल ब्रोमाइड। अच्छा, IUPAC लिखना है, तो IUPAC में काउंट कार्बन 3 कार्बन एटम इस प्रोपेन। प्रोपेन का ई आप रिप्लेस करोगे किससे? OYL ब्रोमाइड, तो प्रोपैनोविल ब्रोमाइड। तो प्रोपियोनिल ब्रोमाइड इज कॉमन नेम, प्रोपैनोविल ब्रोमाइड इज IUPAC नेम। तो ब्रोमाइड डाल दिया, मतलब लेकिन ज़्यादातर आपको क्लोराइड ही आएगा। ओके, बिकॉज यू हैव अ केमिकल RCOCl, ये आपको दिखेगा बहुत बार रिएक्शन में RCOCl के फॉर्म में। सो दिस इज ऑल अबाउट एसिड हालाइड। पॉज कर लो एंड कंप्लीट इट। Okay guys, I'll rub this out. Let's move on to the next molecule. Next molecule is acid anhydride.
एनहाइड्राइड मीन्स विदाउट वाटर। ये मॉलिक्यूल बनता कैसे, मैंने पहले भी सिखाया था। आप दो मॉलिक्यूल एसिड के लो, मतलब ये भी देखो एसिड का ही डेरिवेटिव है, ये मैं सिखा चुका हूँ आप लोगों को पहले। इसमें से आप वाटर निकालो, मतलब HOH, H2O निकाल दिया, O को ज्वाइन कर दिया इससे, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाता है, RC डबल बॉन्ड OOC डबल बॉन्ड OR। ठीक है। नाउ कॉमन नेम कैसा लिखेंगे फॉर दिस मॉलिक्यूल, कॉमन नेम लिखना है। तो कॉमन नेम के लिए यू राइट डाउन, अगेन इट इज एसिड का डेरिवेटिव, कॉमन नेम ऑफ एसिड, ठीक है, एंड रिप्लेस द वर्ड IC acid with the word IC acid with the word एनहाइड्राइड, इससे रिप्लेस कर दो, बस एनहाइड्राइड लिखना, IC एसिड हटा के। और IUPAC में इसी बोथ साइड, दोनों साइड अगर इक्विवेलेंट है, काउंट कार्बन एटम एट वन साइड, राइट इट डाउन एज अल्केन। अल्केन का E रिप्लेस आप किससे करोगे, OIC एसिड। सो E ऑफ अल्केन इज रिप्लेस विद OIC एसिड, है ना। तो अब आप करोगे OIC एनहाइड्राइड, एसिड होता तो आप एसिड से रिप्लेस कर दे, एनहाइड्राइड तो एनहाइड्राइड से, तो इट बिकम्स अल्कैनोइक एनहाइड्राइड। ओके, सो अल्कैनोइक एनहाइड्राइड, रिमेंबर दिस। नाउ अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ समझाने के लिए कि इसका सिस्टम कैसा होगा। सपोज मैंने दोनों साइड पे H लिया है, H C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O H। तो देखने का पहले वी नो दैट एनहाइड्राइड इज मेड अप ऑफ टू एसिड्स, OH प्लस H O C डबल बॉन्ड R। आप वहाँ का वाटर निकालते हो एसिड का, और तब जाके ये बनता है एनहाइड्राइड। ओके, आपने कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ किया लाइक P2O5, फॉस्फरस पेंटॉक्साइड इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो ये बनेगा वाटर निकाल के। ठीक है, अगर दोनों एसिड सेम लिया है तो आपको दोनों साइड सेम ही मिलेगा, जैसा ये है, इसके दोनों साइड सेम है, दोनों साइड सेम है मतलब ये एक ही एसिड से बना है। ऑब्वियसली इफ इट हैज़ H एंड H, अगर मैं H और H डाल दूँ तो आप बोलेंगे सर ये फॉर्मिक एसिड है, ये फॉर्मिक एसिड है, मतलब ये फॉर्मिक एसिड का एनहाइड्राइड है, मतलब दिस एनहाइड्राइड इज मेड अप ऑफ वन सिंगल एसिड, फॉर्मिक एसिड। तो 2 मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड को ये बना है वाटर निकाल के। तो इसका कॉमन नेम के लिए आप क्या करो, अगर दोनों साइड सिमेट्रिकल है तो कोई एक ही साइड देखने का, दैट्स इट। तो एक साइड वाला एसिड, एक कार्बन वाला एसिड कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड। आप IC एसिड निकालो, सॉरी ओनली एसिड निकालना है, तो आप IC रहने दो, एसिड निकाल के क्या डाल दोगे, एनहाइड्राइड। मतलब ये बना किससे है, फॉर्मिक एसिड से बना है, इसके लिए फॉर्मिक एनहाइड्राइड। ठीक है, अगर इसका IUPAC लिखना है तो अगेन एक ही साइड देखो, एक साइड का एक ही कार्बन है क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल था। एक कार्बन का एसिड कौन सा होता है, मिथेनोइक एसिड, तो अगेन मीथेन लिखोगे, मीथेन का E किससे रिप्लेस करोगे, OIC एनहाइड्राइड। सो मिथेनोइक एनहाइड्राइड। गाइस करना कुछ नहीं है, सिंपल है। जहाँ पर भी एसिड वर्ड था ना, जैसे ये एक कार्बन के एसिड से बना है ये मॉलिक्यूल, तो फॉर्मिक एसिड, यहाँ पर क्या होगा, मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड से ये बना है। एक्चुअली में ये रिएक्शन की वजह से आप लिख रहे हो कि दिस एंटायर मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ फॉर्मिक एसिड, दिस एंटायर मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ मिथेनोइक एसिड, क्योंकि फॉर्मिक एसिड मिथेनोइक एसिड सेम है। सो व्हाट यू डू, यू रिमूव एसिड फ्रॉम बोथ द केसेस एंड यू जस्ट राइट डाउन द वर्ड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। ओके, अब जैसा दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, दोनों जगह पे मैंने सपोज CH3 डाल दिया, तो इफ आई इंट्रोड्यूस CH3 ऑन बोथ साइड इन बोथ आर, इट बिकम्स CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। आप बोलेंगे सर दोनों साइड इक्विवेलेंट है, कोई एक साइड ही देखो, मतलब यही साइड देखो, तो कॉमन नेम लिखो। दो कार्बन का कॉमन नेम कौन सा होता है, कौन सा एसिड होता है, एसिडिक एसिड। एसिड हटा के क्या लिख दिया आपने, वर्ड एनहाइड्राइड। अच्छा, इसका IUPAC लिखना है तो एक ही साइड देखो क्योंकि इक्विवेलेंट है दोनों साइड। एक साइड पे कितने कार्बन है, 2 ही कार्बन है, तो 2 कार्बन का अल्केन कौन सा हुआ, इथेन। इथेन का E आप किससे रिप्लेस करोगे, OIC एनहाइड्राइड। मतलब ये इथेनोइक एसिड से बना है, इसके लिए इथेनोइक एनहाइड्राइड। व्हाट इफ इट इज मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट एसिड, मतलब यहाँ का R और ये R सेम नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ऐसा लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O, नहीं इससे मिलते हुए एग्जाम्पल लेते हैं, H C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। अब दोनों साइड देखो, अभी एनहाइड्राइड है बट एक साइड एक कार्बन है और एक साइड दो कार्बन है, मतलब ये जो एनहाइड्राइड बना है ये दो सेम एसिड से नहीं बना, इसमें एक एसिड इन्वॉल्व होगा एक कार्बन वाला, दैट इज फॉर्मिक एसिड, एंड सेकेंड एसिड इज acid with two carbon, that is acetic acid. So it's a mixture of formic and acetic. So now if it is non-equivalent, then you see both sides. So if I want to write down common name, so one side resemble formic acid, one side resemble acetic acid. Alphabetically A come first, so it will be known as acetic, formic, anhydride. अच्छा, IUPAC, चलो अगेन दोनों साइड लिखना है, वन साइड इज वन कार्बन यानी मीथेन, सेकेंड लेफ्ट पे दो कार्बन यानी इथेन, सो इट विल बी कॉल्ड एज इथेनोइक, मीथेनोइक एनहाइड्राइड। सो हैव टू रिमेंबर कि कितने कार्बन का कंपाउंड बन रहा है। अगर ऑब्वियस बात है ये इथेनोइक और मिथेनोइक एसिड से बना है, दो अलग अलग एसिड से बना है, इसके लिए दोनों के नाम आ रहे हैं, सिंपल। Okay, so pause it and note it down. Okay guys, let's start with the next molecule. Okay, the next molecule is nitroalkane. Nitroalkane is represented by the formula RNO2 group। याद रखो NO2 ग्रुप अगर सब्स्टिट्यूएंट हुआ तो इसका प्रीफिक्स होता है, NO2 ग्रुप को हम लोग बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप। ओके, ऑलवेज एक्ट एज प्रेफरेंस, ऑलवेज एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट, नाइट्रो ग्रुप। नाउ इसमें कॉमन नेम नहीं होता, इसका सिर्फ IUPAC होता है। IUPAC इज नाइट्रोअल्केन। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट डाउन CH3NO2 तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रो मीथेन। इफ आई राइट डाउन CH3NO2 सो इट विल बी 1 2 3 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सेकेंड पे नाइट्रो ग्रुप है, so it will be called as 2 नाइट्रोप्रोपेन। ठीक है, बेंजीन आया तो नाइट्रोबेंजीन। इफ इट इज C6H5NO2 दिस बिकम्स नाइट्रोबेंजीन। ओके, सेम है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, NO2 शुड गेट लीस्ट पोजीशन, NO2 में कार्बन नहीं होता। सो दिस इज नाइट्रोअल्केन। पॉज करो, नोट डाउन करो, इसके बाद आई विल स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल। Okay guys, let's start with the next molecule, very important. The next molecule is amines. Amines are of three type. Amines are derivative of ammonia. If you remember, it's of three type. The first amine में तीन type होते हैं. The first amine is called as, the first one is primary amine with RNH2 group रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पर इसका फंक्शनल ग्रुप NH2 होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमीनो ग्रुप, जिसका प्रीफिक्स अमीनो है, NH2 इज अमीनो। ठीक है, देन इसमें सेकेंड अमाइन होता है सेकेंडरी अमाइन,
फॉर्मूला इज RNHR। ओके, यहाँ पर NH ग्रुप, इसका प्रीफिक्स होता है NH को हम लोग बोलते हैं इमिनो ग्रुप। एंड थर्ड अमाइन इज टर्शियरी अमाइन, वेर इट इज RNR। तो N ट्रिपल बॉन्ड N को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्राइल। तो N इज द नाइट्राइल, द टर्शियरी नाइट्रोजन ग्रुप। ठीक है, सो दीज आर द प्रीफिक्स अमीनो एंड नाइट्राइल, अमीनो, इमिनो एंड नाइट्राइल। प्राइमरी अमाइन के बारे में पहले हम लोग बात करते हैं ना। प्राइमरी अमाइन हैज अ फॉर्मूला ऑफ RNH2, सेकेंडरी अमाइन R2NH, टर्शियरी अमाइन R3N। चलो पहले प्राइमरी अमाइन के बारे में बात करेंगे, पहले नोट डाउन कर लो। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ प्राइमरी अमाइन। नाउ प्राइमरी अमाइन हैज अ फॉर्मूला RNH2, where NH2 can be used if it is acting as a substituent, then its prefix is amino. Now सबसे पहली बात, प्राइमरी अमाइन का कॉमन नेम क्या होगा? तो प्राइमरी अमाइन का कॉमन नेम अल्कोहल जैसा है, अल्काइल अल्कोहल लिखते थे, वैसे ये पार्ट हो जाएगा अल्काइल, और NH2 के लिए आप लिखोगे अमाइन, सिंपल। अच्छा, IUPAC लिखना है तो पूरे टोटल कार्बन काउंट करो, दैट विल बी योर अल्केन। अल्केन का आप ई यानी वॉवल रिप्लेस करोगे विद द वर्ड अमाइन। अमाइन है, अमाइड नहीं है, अमाइन। तो अमाइन स्टार्ट्स विद ए, वॉवल, तो इट बिकम्स अल्केना अमाइन। बट NH2 शुड गेट लीस्ट पॉसिबल नंबर। NH2 में कोई कार्बन नहीं है, तो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा, तो उसमें NH2 को लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैंने लिखा CH3NH2, तो अब इसका कॉमन नेम क्या होगा? CH3 इज कॉल्ड एज मीथाइल, कॉमन नेम अल्काइल, तो मीथाइल। NH2 विल बी अमाइन। अगर इसी का ही IUPAC लिखना है तो काउंट टोटल कार्बन इज 1, तो 1 कार्बन का अल्केन इज मीथेन, यू रिप्लेस E ऑफ मीथेन विद द वर्ड अमाइन, मीथेन अमाइन, लाइक अल्कोहल, सिंपल। देन सेकेंड, अगर मैंने ऐसा लिखा CH3 CH2 CH2 NH2, इफ आई राइट डाउन कॉमन नेम, तो आप बोलेंगे सर ये अल्काइल जो है वो प्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल नहीं है, एन प्रोपाइल है, बिकॉज टर्मिनल से अटैच है, तो इसके लिए अल्काइल विल बी प्रोपाइल अमाइन। और किसी ने अगर N हाइफिन प्रोपाइल लिखा, N प्रोपाइल अमाइन तो भी चलेगा, प्रोपाइल अमाइन तो भी चलेगा। अच्छा, IUPAC, तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, NH2 शुड गेट लीस्ट पॉसिबल नंबर लाइक अल्कोहल। NH2 सेकेंड पे भी हो सकता था, इसके लिए इसको नंबर करना ज़रूरी है। अब ये फर्स्ट पे है, चलो टेल मी, 3 कार्बन का अल्केन कौन सा होता है? प्रोपेन। इसका E रिप्लेस करके क्या लिखोगे? अमाइन। बट अमाइन कौन से पोजीशन पे? फर्स्ट, तो प्रोपेन 1 अमाइन। इसके लिए मैं हमेशा अल्केना अमाइन के लिए ऐसा लिखता हूँ, अल्केना अमाइन का IUPAC होता है अल्केन नंबर अमाइन, where number is the least position of NH2। NH2 का सबसे लीस्ट पोजीशन होगा नंबर, अल्केन नंबर अमाइन, सो प्रोपैन 1 अमाइन। ठीक है, थर्ड अगर मैंने एग्जांपल ये लिया CH3NH2, अब कॉमन नेम लिखना है, तो ऑब्वियसली ये कौन सा टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप है, तो कॉमन नेम विल बी टर्ड ब्यूटाइल अमाइन। अच्छा, IUPAC लिखना है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो 1 2 3, 2 पे मिथाइल है और 2 पे अमाइन है, सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखो, तो 2 मिथाइल। अब 3 कार्बन का अल्केन है चेन आपका, तो 3 कार्बन के चेन के अल्केन के लिए प्रोपैन के सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है अमाइन, सो प्रोपैन 2 अमाइन। ठीक है, नाउ सपोज इफ आई राइट डाउन C6H5NH2, तो इसका कॉमन नेम अल्काइल अमाइन, ये कौन सा अल्काइल है? C6H5 फिनाइल, सो दिस इज फिनाइल अमाइन। अगर मुझे इसका IUPAC लिखना है तो IUPAC इज बेंजीन, का ई निकाल दिया तो बेंजीना अमाइन, या तो फिर हम लोग लिख सकते हैं अमाइनो, NH2 इज अमीनो। रिंग क्या लिखेंगे? रिंग के लिए बेंजीन,
तो अमाइनो बेंजीन भी लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट प्राइमरी अमाइन। प्लीज पॉज करो, नोट डाउन दीज एग्जाम्पल्स इन प्राइमरी अमाइन। दिस आउट। अभी हम लोग जाएंगे सेकेंडरी अमाइन पे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। Now 2-degree amine or secondary amine has a general formula of RNHR. Okay, this is your general formula, जहाँ पर NH ग्रुप को क्या बोलते हैं, इमीनो ग्रुप, प्रीफिक्स इज इमीनो, ये NH ग्रुप। नाउ RNHR, दिस इज दियर जनरल फॉर्मूला। तो इसका कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम में लाइक ईथर, लाइक कीटोन, इफ बोथ द आर आर सेम, अगर दोनों आर सेम हुए, आर इज इक्वल टू आर डैश, दोनों आर सेम हुए, देन इट विल बी कॉल्ड एज डाई अल्काइल अमाइन। ठीक है, अगर दोनों आर डिफरेंट है, नॉट इक्वल टू आर, देन इट विल बी नेम्ड एज अल्काइल अल्काइल अमाइन, लाइक अल्काइल अल्काइल ईथर, अल्काइल अल्काइल कीटोन। आपको याद हो रहा होगा बाई फंक्शन ग्रुप जिसमें दो अल्काइल होते हैं अदर साइड पे, जैसे अल्काइल अल्काइल अमाइन सिमिलरली। अच्छा, IUPAC लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। RNHR, अगर दोनों ग्रुप सेम हुए तो इजीली नेम हो जाएगा। अगर दोनों ग्रुप डिफरेंट है तो एक स्मॉलर होगा और एक लार्जर होगा। तो जो स्मॉलर ग्रुप होगा, लार्ज ग्रुप, तो स्मॉलर ग्रुप के लिए हम लोग लिखेंगे N डैश अल्काइल, मतलब इट इज एन अल्काइल, बट व्हाई N हाइफन? बिकॉज दिस N अटैच, दिस N रिप्रेजेंट्स द अटैचमेंट ऑफ द अल्काइल ग्रुप टू द नाइट्रोजन। तो ये N जो है, कैपिटल N, ये नाइट्रोजन है बेसिकली, लेकिन नाइट्रोजन के साथ एक अल्काइल अटैच है। फिर जो लार्जर ग्रुप रहेगा ऑब्वियसली वो क्या बनाएगा, अल्केन। अल्केन का E आप किससे रिप्लेस करोगे, नंबर, अमाइन, पोजीशन ऑफ द NH ग्रुप ऑन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऑफ दिस R, लार्ज R। तो जो लार्ज रहेगा अल्काइल ग्रुप वो अमाइन बनाएगा, पेरेंट बनेगा, अल्केन नंबर अमाइन। और जो स्मॉलर है, जो नाइट्रोजन से अटैच है, दैट विल बी N अल्काइल। ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसा मैंने ये एग्जाम्पल दिया, CH3NH अब यहाँ पर दोनों भी अल्काइल सेम है, तो अगर मुझे इसका कॉमन नेम लिखना है तो इट विल बी डाई अल्काइल, सो इट विल बी डाई मीथाइल अमाइन। चलो ये तो मैं समझ गया। लेकिन अगर मुझे इसका IUPAC लिखना है तो मैं क्या करूं? तो IUPAC में एक को मैं अल्काइल बनाऊंगा जो नाइट्रोजन से अटैच है, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो नाइट्रोजन से कौन अटैच है, मीथाइल, सो N मीथाइल। और ये पार्ट को मैं अल्केन बनाऊंगा। तो एक कार्बन का अल्केन कौन सा होता है, देखो एक ही कार्बन है राइट पे, तो एक कार्बन का अल्केन कौन सा होता है, मीथेन। और पोजीशन लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन पे ही NH है और कोई पोजीशन है ही नहीं। सो मीथेन, E हटा के क्या आ जाएगा, अमाइन। तो N मिथाइल, मीथेन अमाइन। दिस N रिप्रेजेंट्स द अटैचमेंट ऑफ मिथाइल टू द नाइट्रोजन ग्रुप। ओके, लेट्स सी द सेकेंड एग्जाम्पल। सपोज मैंने सेकेंड एग्जाम्पल ले लिया, CH3NHC2H5। Now in this example there are two different alkyl groups. So if I want to write down common name, one is ethyl, one is methyl. So alkyl alkyl amine, मतलब alphabetically ethyl पहले आएगा, then methyl आएगा, then amine आएगा, जो हम लोग ether और ketone में कर रहे थे वही सेम चीज़। But if I want to write down IUPAC of this compound, so I have to select one as alkyne and one as alkane amine. तो alkyl किसको लेंगे, स्मॉलर ग्रुप को। तो ये आपका स्मॉलर ग्रुप है, तो ये अल्काइल बनेगा। ये किससे अटैच है, नाइट्रोजन से, तो N मिथाइल। अब लार्जर ग्रुप है वो अल्केन बनेगा, तो दो कार्बन का अल्केन कौन सा होता है, ईथेन। ईथेन का मैं E किससे रिप्लेस करूँ, अमाइन से। पोजीशन डालने का जरूरत नहीं बिकॉज वो चेंज नहीं होगा, तो इथेना अमाइन, सिंपल। स्मॉलर ग्रुप अल्काइल जो N से अटैच है, लार्जर ग्रुप अमाइन।
Third example, suppose if I write down CH3, CH2N attached to CH3, CH3. अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर एक इथाइल ग्रुप लेफ्ट पे है और आइसोप्रोपाइल ग्रुप राइट पे है, तो अल्फाबेटिकली ई कम फर्स्ट, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल. कॉमन नेम इज इथाइल, ई कम फर्स्ट. फिर राइट पे क्या है, आइसोप्रोपाइल, तो आई बाद में आता है, इसके लिए आइसोप्रोपाइल अमाइन. लेकिन अगर मुझे इसका IUPAC लिखना है तो ये स्मॉलर ग्रुप होगा जो नाइट्रोजन से अटैच है. तो स्मॉलर ग्रुप के लिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, N. नाइट्रोजन से कौन अटैच है, इथाइल. स्मॉलर ग्रुप इज इथाइल. नो लार्जर ग्रुप इज ब्रांच, तो नंबर करो 1 2 3. 3 कार्बन में नंबर करना ही पड़ता है, चाहे अल्कोहल हो अमाइंस हो, 3 कार्बन नंबर करो. अब सेकेंड पोजीशन पे NH ग्रुप है और 3 कार्बन का अल्केन कौन सा हुआ, 3 कार्बन का अल्केन इज प्रोपेन. प्रोपेन का E रिप्लेस करो विथ 2 अमाइन. अब ये नंबरिंग 2 कार्बन और फर्स्ट कार्बन में इट इज नॉट नेसेसरी बिकॉज द पोजीशन वोंट चेंज, बट इन 3 कार्बन NH कैन ऑल्सो प्रेजेंट एट फर्स्ट पोजीशन. तो इफ पोजीशन इज चेंजिंग वी नीड टू मेंशन द पोजीशन, द रिस्पेक्टिव प्लेस. सो इट इज N ethyl propan 2 amine. Okay, so this is secondary amine. Copy it down. Examples. Okay guys, I'll rub this out. We'll move on to tertiary amine now. टर्शरी अमाइन के लिए आई वोंट गिव यू एनी काइंड ऑफ शॉर्टकट्स, आपको सेकेंडरी अमाइन का ही यूज़ करना है बेसिक, और वही सॉल्व करेंगे हम लोग. सो थर्ड वन इज 3 डिग्री अमाइन, जिसको रिप्रेजेंट कैसा करते हैं हम लोग, RNR. सेम डिफरेंट कुछ भी हो सकता है. एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं. पहला एग्जाम्पल लेता हूँ, तीनों R को सेम बनाता हूँ. CH3N, CH3, CH3. Now when it was secondary amine, it was NHCH3. You wrote dimethylamine as a common name, याद है, dialkylamine. But ये tertiary है और तीनों CH3 है, तो you will write down trimethylamine. Simple. Secondary था तो dimethyl क्योंकि 2 थे, tertiary था तो 3 मिथाइल, trimethylamine. अच्छा, IUPAC लिखना है तो अब क्या करेंगे, किसी एक को पेरेंट बनाना पड़ता है जो अल्केन अमाइन बनता है, तो इसको पेरेंट्स बना देते हैं हम लोग, इसको पेरेंट बना देते हैं. तो ये दोनों आपके क्या हो गए, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो गए. ये दोनों किस पे प्रेजेंट है, नाइट्रोजन पे. सो N, डाईमिथाइल, दोनों मिथाइल N से अटैच है. फिर एक कार्बन का अल्केन बना, दैट इज मीथेन. मीथेन का E किससे रिप्लेस करोगे आप, अमाइन. सिंपल. क्योंकि आपको याद होगा जब ये सेकेंडरी था CH3NH CH3, तो आपने इसका नाम लिखा था N मिथाइल. इस पार्ट को मिथाइल बनाया था जो नाइट्रोजन से अटैच है. फिर आपने लिखा था मीथेना अमाइन, ये पार्ट को आपने अल्केन अमाइन बनाया था. बट अगर ये H की जगह पे एक और एक CH3 आता है तो N, डाई हो जाएगा, ये डाई मिथाइल हो जाएगा, क्योंकि 2 मिथाइल अब बनेंगे क्योंकि एक ही पेरेंट रहेगा, 2 सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे. तो टर्शियरी इज लाइक सेकेंडरी ओनली नेमिंग सिस्टम, कुछ डिफरेंस है ही नहीं. और सब में वही लगता है. देखो ये प्राइमरी का पार्ट एंड में लगता है, प्राइमरी से अल्केन अमाइन जो एंड में लगेगा, अल्केन अमाइन. सो प्राइमरी से सेकेंडरी आया, जब सेकेंडरी प्राइमरी से सेकेंडरी आओगे, फॉर एग्जांपल आई राइट डाउन, देख लो ध्यान से, CH3NH2, तो इसको आप बोलते हो मीथेना अमाइन. अगर मैंने यहाँ एक CH3 डाल दिया तो आप बोलोगे सर इट इज़ N मिथाइल. एक को आपने मिथाइल ले लिया और ये मीथेना अमाइन है. फिर अगर यहाँ एक CH3 डाल दिया तो आप बोलेंगे सर N, डाईमिथाइल, बट वो मीथेन अमाइन सेम ही है. सब्स्टिट्यूएंट बढ़ रहा है तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन डालो, दोनों नाइट्रोजन से अटैच है. सेकेंड एग्जाम्पल देता हूँ इसमें. सपोज इफ आई राइट डाउन CCH5N, नहीं CCH5 लेता हूँ, सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ थोड़ा. CH3N, CH2CH3, देन CH2CH2CH3. अब देखो ये टर्शियरी अमाइन है, 3 डिफरेंट ग्रुप, वन इज मिथाइल, वन इज इथाइल एंड दिस इज प्रोपाइल, N प्रोपाइल. तो प्रोपाइल स्टार्ट्स विथ P,
ई एम, तो पहले ई आ जाएगा, मतलब इसका कॉमन नेम लिखना है तो इथाइल, देन एम मिथाइल, देन प्रोपाइल, तो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल अमाइन। अच्छा IUPAC लिखना है, इस कंपाउंड का IUPAC लिखना है, तो 1 2 3, दिस इज योर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो ये आपका पेरेंट हो गया, फर्स्ट पोजीशन पे अटैच। अच्छा ये मिथाइल इथाइल क्या हो गए, सब्स्टिट्यूएंट, दोनों नाइट्रोजन से अटैच है, दोनों डिफरेंट है तो दोनों का लिखो। पहले इथाइल ई कम फर्स्ट अल्फाबेटिकली, तो नाइट्रोजन से इथाइल, सो फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल एन इथाइल, देन हाइफन एन मिथाइल, फिर 1 2 3, तो 1 2 3 मतलब प्रोपेन, प्रोपेन के फर्स्ट पोजीशन पे अमाइन, सो प्रोपेन अमाइन। ओके नो, अगर सपोज इसमें सब्स्टिट्यूएंट और बढ़ गए, यहां ही ब्रांच हो गया, तो क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं मैं, थर्ड मॉलिक्यूल, सिर्फ इसका IUPAC लिखेंगे, CH3N C2H5, मैं एग्जाम्पल में यहाँ पर लिख रहा हूँ CH3 CH3 तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा टर्ड ब्यूटाइल, बी कम फर्स्ट, तो टर्ड ब्यूटाइल इथाइल मिथाइल अमाइन, कॉमन नेम है टर्ड ब्यूटाइल मिथाइल इथाइल अमाइन, वो आप लोग लिख लेना, ठीक है। टर्ड ब्यूटाइल इथाइल मिथाइल अमाइन, कॉमन नेम, बी कम फर्स्ट, तो आपने टर्ड ब्यूटाइल का टी नहीं बी कंपेयर करते, याद है ना आपको, सिर्फ आइजो का आई होता है, बाकी सबका इनिशियल्स लेने का विद रिस्पेक्ट टू द अल्काइल ग्रुप्स, सो टर्ड ब्यूटाइल इथाइल अमाइन। बट इफ आई वांट टू राइट डाउन IUPAC, तो नाउ पेरेंट कौन बनेगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो यहीं दिख रहा है मुझे 1 2 3, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया। तो अब पहले मैं ये दोनों का लिख देता हूँ पोजीशन, दोनों किससे अटैच है, नाइट्रोजन से, सो N अटैच टू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन अटैच टू इथाइल ग्रुप, देन मिथाइल इज अगेन अटैच टू नाइट्रोजन, सो N मिथाइल, ये दोनों हो गया, फिनिश। अब ब्रांच में सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल, तो अब ब्रांच लिखो 2 मिथाइल, जो पेरेंट का ब्रांच है, फिर 3 कार्बन का चेन बना, तो 3 कार्बन का चेन इज प्रोपैन 2 अमाइन, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे N अटैच है, सो N इथाइल N मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपैन 2 अमाइन। ओके, प्लीज कॉपी इट डाउन, टर्शियरी अमाइन। Okay guys, let's start with some polyfunctional compounds which have more than one functional group. For that we will use the priority order. अब मैंने सारे ग्रुप्स डिस्कस कर दिए। प्रायोरिटी जिसका सबसे ज़्यादा रहेगा that will be the parent compound, and that if it has a carbon then it should get a least possible number. If it is a non-carbon functional group like OH, NH2, it should get a least number on the longest carbon chain. So polyfunctional organic compound में we going to discuss many organic compound which have more than one functional group, लेकिन आपको उसका ruling के लिए you need to learn the priority order. Okay, so let's start with the examples of polyfunctional organic compounds. Now first organic compound, suppose मैंने ऐसा लिया, सिंपल करते, CH3 CH2 then C double bond O CH2COOH. I want to write down the IUPAC. हम लोग सिर्फ यहाँ पर IUPAC ही डिस्कस करेंगे. Now this molecule has two functional group in it, COH group and C double bond O group, मतलब ketonic group and acid group. सो प्रायोरिटी में एसिड इज मोर देन कीटोन, मतलब ये पूरा कंपाउंड में रूलिंग किसका हुआ, एसिड का। सो बाय डिफॉल्ट दिस कार्बन गेट फर्स्ट पोजीशन, दिस इज सेकंड पोजीशन, दिस इज 3 4 5। अब नाउ दिस कीटोन इज एक्टिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो मैंने सिखाया था जब ये सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करता है तभी आपको सी डबल बॉन्ड का प्रीफिक्स लिखना पड़ता है, दैट इज ऑक्सो। सो द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी, थर्ड पोजीशन देयर इज एन ऑक्सो, सो 3 ऑक्सो, फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल, 5 कार्बन का चेन है। तो हम लोग एसिड को नेम कैसा करते हैं, यू राइट डाउन द नेम ऑफ अल्केन पेंटेन, देन E ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय द सफिक्स दैट इज OIC एसिड, सो इट इज 3 ऑक्सो
पेंटानोइक एसिड, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे ऑक्सो आ गया। अब सपोज ये मॉलिक्यूल ऐसा होता, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 OH। अब यहां पर दो फंक्शनल ग्रुप आ गए फिर से, वन इज अ OH अ हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड सेकेंड इज C डबल बॉन्ड O। तो प्रायोरिटी में कीटोनिक इज मोर देन अल्कोहल, तो पूरा कंपाउंड कीटोन का हुआ, मतलब C डबल बॉन्ड O शुड गेट लीस्ट पॉसिबल नंबर। तो लेफ्ट से नंबर करोगे तो 1 2 सेकेंड पोजीशन मिलेगा, राइट से करोगे तो 1 2 सेकेंड मिलेगा, मतलब दोनों साइड से सेकेंड मिल रहा है। कहीं से भी नंबर कर सकते हैं नहीं, आपको फिर वो साइड सिलेक्ट करनी है। यू हैव टू सिलेक्ट दैट साइड वेयर OH विल गेट लीस्ट, बिकॉज इसको तो सेकेंड ही मिल रहा है। सो यू हैव टू नंबर फ्रॉम योर 1 2 and 3। नाउ फर्स्ट हैज OH। नाउ व्हेन दिस OH एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट, उसको हम लोग क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी। सो फर्स्ट तो IUPAC नेम क्या होगा, 1 हाइफिन हाइड्रोक्सी। 3 कार्बन का अल्केनिस प्रोपेन, ई हटा के हम लोग क्या लिखते हैं, ओन। प्रोपेन के सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो प्रोपेन 2 ओन। अगर किसी ने प्रोपेनोन लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि प्रोपेन में सेकेंड के अलावा और कोई पोजीशन पे कीटोन नहीं आ सकता। सो यू कैन राइट डाउन प्रोपेन 2 ओन, लाइक कीटोन आप नेम करते हो या प्रोपेनोन नेम कर दो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ओके, नाउ थर्ड, let's make a bond line formula. Here I write down H, here I write down double bond O, ठीक है। यहां पर मैंने लिख दिया है a methyl group, here there is a bromine group, okay, and I put a NH2 group here. Now if you see the functional group, so you have a primary amine का functional group, you have halogen group and you have, this is what, carbon, तो CHO aldehyde group है। तो you have aldehyde, you have amines, so aldehyde has a higher priority than amine NH2, तो aldehyde will get least possible number, पूरा compound ही उसका होगा, तो this will be first carbon by default of aldehyde। ये second carbon हो गया, third, fourth, fifth, sixth। अब third पे क्या है, मिथाइल। थर्ड पे क्या है, ब्रोमीन, स्टार्ट्स विद B, ब्रोमो। फोर्थ पे क्या, अमीनो, अमीनो स्टार्ट्स विद A, तो अल्फाबेटिकली A पहले आएगा। तो द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी 4 माइनो 3 ब्रोमो। देखो सब अल्फाबेट स्मॉल है, सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल है, 3 मिथाइल। अब कितने कार्बन बच गए, 6, तो 6 कार्बन का हेक्सेन। और आपको याद होगा हेक्सेन का ई अल्डिहाइड में हम लोग किससे रिप्लेस करते, आल। नो नीड टू मेंशन द पोजीशन, बिकॉज अल्डिहाइड अगर मेन ग्रुप है तो वो फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा, तो हेक्सेनाल। सो 4 अमीनो 3 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेनाल। ओके, हमेशा याद रखना सब्स्टिट्यूएंट के वर्ड्स नहीं भूलने का। कौन से, जब वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहे हैं, जैसा ये ऑक्सो बन जाता है, मतलब C डबल बॉन्ड O एक्ट एज ऑक्सो, NH2 ग्रुप लिया तो उसको सब्स्टिट्यूएंट में हम लोग क्या बोलते हैं, अमीनो। OH ग्रुप लिया, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्सी ग्रुप। CHO ग्रुप होगा तो जब वो सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो फॉर्माइल बोलते हैं, फॉर्माइल ग्रुप। CN इज कॉल्ड एज साइनो ग्रुप। ओके, देन SH is called as mercapto group, ठीक है, जो थायोल के लिए यूज होता है। देन यू हैव C डबल बॉन्ड OX, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोफॉर्माइल या तो हैलोकार्बोनिल, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। कार्बोनिल CARBONYL, व्हेन दे एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट, जब वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है तब उसको हैलो, X इज हैलो, NO इज नाइट्रोसो, NO2 इज नाइट्रो, OR इज एल्कोक्सी, N3 इज अजीडो, ONO इज नाइट्रीटो, R इज अल्काइल, CCH5 इज फिनाइल, RRO इज एपॉक्सी। अगर 2 कार्बन हुआ तो ऑक्सीजन के साथ में एपॉक्सी। तो ये सारे वर्ड्स हम लोग को भूलने का नहीं। एग्जाम्पल CONH2, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट बना तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज कार्बामोइल, MOYL, कार्बामोइल बोलते हैं। सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज हो रहा है, देन दे आर नेम्ड एज कार्बामोइल, ठीक है।
COR होगा, मैंने बताया था COR इज कॉल्ड एज एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोऑक्सी, तो एल्कोक्सी मतलब OR, अल्काइल एंड ऑक्सीजन, और कार्बोनिल यानी CO, तो एल्कोक्सी कार्बोनिल, और सिर्फ OR हुआ तो एल्कोक्सी। तो ये कॉपी दिस एग्जाम्पल, विल सॉल्व मोर क्वेश्चंस ऑन इट। एग्जाम्पल्स कॉपी करो प्लीज पॉज करके। ये सारे प्रीफिक्स नेम है, मतलब व्हेन दे एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। आप भी ट्राई करो, आई राइट डाउन द मॉलिक्यूल, आप पॉज करके ट्राई करो इस मॉलिक्यूल का नाम क्या हो सकता है। द फोर्थ मॉलिक्यूल, लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ मॉलिक्यूल। फोर्थ मॉलिक्यूल में मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ओके, C डबल बॉन्ड OH। देखो एक एसिडिक ग्रुप है, यहाँ एक डबल बॉन्ड है, here there is a SH group, ठीक है, and here there is a C, यहाँ पर मैं चेन एक्सटेंड करता हूँ, यहाँ पर डाल देता हूँ, नहीं here there is a carbon attached to ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये साइनाइड ग्रुप होगा, C ट्रिपल बॉन्ड N ऐसा दिखता है क्योंकि यहाँ पर कार्बन होगा ना, तो कार्बन की जगह पे डॉट, C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड ग्रुप। So now you have 3 functional group, in fact 4 है, mercapto which is thiol, alkene, cyanide and COOH, carboxylic acid। देखो ये कार्बन है, C डबल बॉन्ड OH, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, तो obviously COH gets the highest priority, so this will be the first carbon, this is second carbon, this is third, fourth, fifth and sixth, longest carbon chain आपने select कर लिया। अब बराबर देखो ये सारे substituent हो गए, तो when SH act as a substituent it is called as mercapto, when CN act as a substituent it is called as cyano। तो साइनो C से आता है, mercapto M से आता है, तो पहले C का नाम होगा तो it will be named as 2 cyano 4 mercapto, then थर्ड पे डबल बॉन्ड है, टोटल 6 कार्बन का चेन है, तो हेक्स, हम लोग डबल बॉन्ड के लिए 6 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, हेक्स 3 इन, एंड दिस E a vowel is replaced by acid, acid फर्स्ट पोजीशन पे, मेंशन करने का जरूरत नहीं, so E is replaced by OIC acid, so hex 3 enoic acid, 2 cyano 4 mercapto, hex 3 enoic acid, okay। fifth molecule, try this out, okay, I'll take a cyclic compound, CHO group, here there is a bromine group, ठीक है, and N2 ग्रुप यहाँ पर आ गया एक, और यहाँ पर मैं एक डबल बॉन्ड ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड, सो यू हैव NO2 ब्रोमीन एंड साइक्लोहेक्सीन है, ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी तो हैलो और नाइट्रो से ज़्यादा ही होता है, हैलो नाइट्रो ऑलवेज एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट, सो बाय डिफॉल्ट आपका मेन CHO, मेन रिंग, ये जो पेरेंट हो गया 6 कार्बन का लॉन्गेस्ट रिंग, is under the control of CHO because CHO is having higher priority than C double bond C, तो by default ये कार्बन जिससे CHO अटैच है वो फर्स्ट हो गया, then this is second, this is third, fourth, fifth, sixth, double bond should get least as compared to NO2 and bromine। अब 5 पे ब्रोमो है, 6 पे नाइट्रो है, तो अल्फाबेटिकली आई विल राइट डाउन फर्स्ट 5 ब्रोमो 6 नाइट्रो, देन साइक्लो ग्रुप है तो साइक्लोहेक्स 1 इन, और इन का ई हम लोग बराबर देखोगे तो रिप्लेस किससे करते, आल से, अल्डिहाइड, बड़ी अल्डिहाइड देखो रिंग के बाहर है, रिंग से अटैच है, तो इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज साइक्लोहेक्सीन कार्ब अल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सीन कार्ब अल्डिहाइड, ओके, कार्ब अल्डिहाइड फर्स्ट पूरा मॉलिक्यूल ही वैसा है, नोट डाउन। नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे जाएंगे हम लोग, I'll rub this out,
Next molecule is molecule number 6. So now we have a longest carbon chain. यहाँ पर एक डबल बॉन्ड डाल देता हूँ, यहाँ एक डबल बॉन्ड डाल देता हूँ, तो सी डबल बॉन्ड सी हो गया, ठीक है. Here it will be I'm adding a group that is C डबल बॉन्ड O Cl. एसिड क्लोराइड यूज़ करते, चलो सी डबल बॉन्ड ओ सी एल यूज़ किया है, एसिड क्लोराइड. हियर यू हैव अ NH2 ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट एंड यहाँ पर मैं एक NC ग्रुप डाल देता हूँ. NC इज़ आइसोसाइनो ग्रुप, आपको याद होगा N ट्रिपल बॉन्ड C. NC ग्रुप डाल देता हूँ इधर पे. ओके, नाउ इन दिस कंपाउंड we have isocyano, we have amino group, isonitrile, amino and acid chloride. तो acid chloride COX, COCl, इसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो ये कार्बन C वाला कार्बन फर्स्ट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट. देन दिस इज सेकेंड कार्बन, दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन. नाउ थर्ड पे अमीनो है और सेकेंड पे क्या है, आइसोसाइनो. आइसोसाइनो आई से स्टार्ट होता है और अमीनो ए से स्टार्ट होता है. तो फर्स्ट राइट डाउन द ए. तो ट्राई करो खुद से पॉज करके. So now the name will be 3 amino 2 isosino. फिर 7 कार्बन का चेन. आपको याद होगा जब COCl होता है, आपको याद होगा अभी मैंने पढ़ाया था, RCOCl को हम लोग बोलते हैं अल्कैनोविल क्लोराइड. मतलब अल्कीन का E आप किससे रिप्लेस करते हो, OYl क्लोराइड से, IUPAC में अल्कैनोविल क्लोराइड. ओके, सो 7 कार्बन विल बी हेप्टानोविल क्लोराइड. आप बोलोगे सर डबल बॉन्ड को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, तो बोलेंगे सर 7 कार्बन है मतलब हेप्टेन होगा. मैंने बोला हाँ हेप्टेन होगा. हेप्टेन का E आप किससे रिप्लेस करोगे, OYl क्लोराइड. 1 डालने का ज़रूरत नहीं क्योंकि फर्स्ट पे ये बाय डिफ़ॉल्ट. बट आप बोलेंगे सर ये हेप्टेन नहीं है, ये 2 डबल बॉन्ड वाला हेप्टीन है. तो मैंने बोला ठीक है, मैं लिख देता हूँ हेप्ट. अब 2 डबल बॉन्ड मतलब डाइन 4 और 7, तो 4 और 7 तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ हेप्ट 4,7 सॉरी 4,6 6 पे आ रहा है, 4 पे और 6 पे, तो 4,6 डाईन. अब बोलेंगे सर डाया मतलब यहाँ वॉवल छोड़ो, ठीक है, हेप्टा डाईन. बट E इज फाइनली रिप्लेस बाय OYl क्लोराइड, क्योंकि अल्केन का E भी आप रिप्लेस कर रहे हो, तो OYl क्लोराइड. 1 डालने का जरूरत नहीं है, 1 OYl क्लोराइड बिकॉज अंडरस्टूड है फर्स्ट पे है. सो इट इज 3 अमीनो 2 आइसोसाइनो हेप्टा 4,6 डाईइनोइल क्लोराइड. आपको याद होगा मैंने ये वॉवल क्यों छोड़ा, बिकॉज इन के आगे नंबर से पहले कोई वॉवल नहीं है. हेप्टानोइल क्लोराइड. ओके, मॉलिक्यूल नंबर 8 CH3 CH2C. यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं, ग्रुप ऐड कर दे. द ग्रुप इज OCH3. यहाँ पर ऐड कर देता हूँ मैं CH3, इसको C2H5 कर देता हूँ, CH2CH3. देन यू हैव CH2 ग्रुप, CH2, then C double bond O and H2. Okay, so in this compound we have a amide group CONH2. ईथर का OCH3 भी है, बट ईथर आपको पता है कि OR this part OR always act as substituents called as alkoxy. तो CH3 है तो मिथॉक्सी होगा, अल्क यानी मीथ क्योंकि एक ही कार्बन है. सो बाय डिफॉल्ट CONH2 का पूरा कंपाउंड हो गया. ट्राई करो खुद से. तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अलॉन्ग विद दिस कार्बन विल बी दिस विल बी द फर्स्ट कार्बन एटम. ये सेकेंड हो गए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. ना थर्ड पे इथाइल ग्रुप है और थर्ड पे मिथॉक्सी. देखो ये एल्कोक्सी सब्स्टिट्यूएंट है, एल्कोक्सी. तो अल्क क्या होगा, अल्क विल बी 1 कार्बन का मीथ, तो दिस विल बी मिथॉक्सी. मिथॉक्सी M से स्टार्ट होता है. ओके, स्टार्ट्स विद M, स्टार्ट्स विद E, तो E पहले लिखना पड़ेगा. तो थर्ड पे इथाइल है, सो 3 फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल इथाइल, 3 मिथोऑक्सी. नाउ अमाइड इज नेम्ड एज अल्केना अमाइड. अल्केन का E आप किससे रिप्लेस करते हो, अमाइड से. तो 5 कार्बन का अल्केन है टोटल ये C मिला के, तो 5 कार्बन का अल्केन विल बी पेंटेन. फिर E आप किससे रिप्लेस करोगे, अमाइड, सो इट बिकम्स पेंटेना अमाइड. 1 डालने का जरूरत नहीं बिकॉज बाय डिफॉल्ट वो टर्मिनल पे आ रहा है, पेंटेना अमाइड.
Okay, so this was molecule number 8. नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे जाते हैं. I'll rub this out. Molecule number 9. Let's make a long carbon chain. ठीक है. Now इस carbon chain में I am adding a group C double bond O O CH2 CH3. तो ये COO, यहाँ पर एक R है, बराबर देखोगे तो मैं यहाँ पर एक डबल बॉन्ड डाल रहा हूँ. ठीक है. फिर उसके बाद में आई एम एडिंग ग्रुप दैट इज OH ग्रुप योर. हाँ, इस कार्बन पे मैं ऐड कर देता हूँ OH ग्रुप. या दे विल बी एन NH2 ग्रुप. एंड यहाँ पर मैं एक 1 2 3 C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड ग्रुप ऐड कर रहा हूँ. एंड इथाइल ग्रुप योर. ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई इसका IUPAC क्या होगा. आप लोग भी ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करने का. नाउ लेट्स सी द फंक्शनल ग्रुप. वी हैव साइनाइड एज फंक्शनल ग्रुप, अमाइंस एज फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप. और ये क्या है? दिस इज COOR. COR मतलब एस्टर एक फंक्शनल ग्रुप है. तो एस्टर का प्रायोरिटी इन सबसे ज़्यादा है. अब आपको पता होगा नॉर्मल एस्टर मैंने सिखाया था कि नॉर्मल एस्टर को हम लोग नेम कैसा करते हैं, जो O से अटैच होता है पहले उसका नाम लिखते हैं, वो है अल्काइल. फिर जितना भी कार्बन बच गया उसका अल्केन लिखते हैं, जो RC से अटैच है इंक्लूडिंग दिस कार्बन, दैट विल बी अल्केन. फिर अल्केन का E आप किससे रिप्लेस करोगे? OH से. सो इट इज़ अल्काइल अल्कैनोएट. दिस इज द IUPAC नेम ऑफ एस्टर. तो एस्टर में दिस इज COO. तो O से जो ये अटैच है इथाइल, पहले तो ये लिखना ही पड़ेगा मुझे. तो फर्स्ट थिंग आई शुड राइट डाउन इथाइल. ठीक है. अब इसमें आते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये आपका फर्स्ट कार्बन हो जाएगा CO का, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ कार्बन. नाउ सेकेंड पे है, नहीं फर्स्ट, दिस इज अ कार्बन एटम, जैसे C डबल बॉन्ड हो एस्टर का. सेकेंड कार्बन है OH यानी हाइड्रोक्सी, H से स्टार्ट होगा. फोर्थ कार्बन इज साइनो जो C से स्टार्ट होता है. थर्ड कार्बन इज इथाइल जो E से स्टार्ट होता है. फिफ्थ कार्बन इज अमीनो जो A से स्टार्ट होता है. तो अल्फाबेटिकली एक कम फर्स्ट, लेकिन पहले मैंने अल्काइल लिखा बाय रूल. आपको याद होगा एस्टर में अल्काइल अल्कैनोएट है, तो पहले अल्काइल लिखने का जो O से अटैच है. अब चेन पे आएंगे तो चेन में सबसे पहले नाम में लिखूंगा अमीनो का जो फिफ्थ पे, तो इथाइल 5 अमीनो. फिर 4 साइनो, C आ गया. फिर 3 इथाइल. ओके. देन उसके बाद में 2 हाइड्रोक्सी, H आ गया. फिर लास्ट में क्या आना चाहिए? अल्केन. कितने कार्बन का अल्केन है? 6 कार्बन. 6 कार्बन का अल्केन क्या होता है? हेक्सेन. और हेक्सेन का E आप किससे रिप्लेस करते हो? OH से. तो हेक्सानोएट होएगा, अल्काइल अल्कैनोएट. बड़ा बोलोगे सर ये हेक्सेन नहीं है, हेक्सीन है. मतलब क्यों? बिकॉज थर्ड पे डबल बॉन्ड है सर. तो मतलब ठीक है, इसको AN मत करो, इसको EN करो. तो आप बोलेंगे नहीं सर, EN का आपको पोजीशन बताना पड़ेगा, क्योंकि वो 4 पे भी हो सकता है, 2 पे भी हो सकता है, 5 पे भी हो सकता है, वो थर्ड पे. तो बताओ. तो मेरा ठीक है, हेक्स 3 इन, और E को हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे? O8. तो हेक्स 3 इन O8. ठीक है. नोट डाउन दिस एग्जाम्पल. I'll rub this out. एक 10th मॉलिक्यूल करेंगे, एक और एक मॉलिक्यूल करते हैं. मॉलिक्यूल नंबर 10. बराबर देखना. C डबल बॉन्ड OH एसिडिक ग्रुप.
2 डबल बॉन्ड, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड, आइसोप्रोपाइल ग्रुप जिसको आप वन मिथाइल इथाइल भी बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल आ गया इधर पे। C6H5 फिनाइल ग्रुप, साइनाइड CN, सब बता रहा हूं मैं, आप लोगों को ट्राई करो पॉज करके, पहले मैं कंप्लीट कर लेता हूं। Here it will be CH डबल बॉन्ड O, अल्डिहाइडिक का फॉर्माइल ग्रुप, CHO ग्रुप, हाइड्रोक्साई ग्रुप, देन मकैप्टो, ये हम लोग ने ऐड कर दिया। फिर यहां पर आएगा C डबल बॉन्ड O NH2, तो C डबल बॉन्ड O NH2 NH2, तो NH2 C डबल NH2 इज अमीडो ग्रुप, कार्बामोइल, ठीक है, ये ग्रुप आ गया। देन एक और इस चेन को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, डबल बॉन्ड O ऑक्सो भी ग्रुप डाल दिया, ऑक्सो ग्रुप भी आ गया इसके अंदर। फिर यहाँ से एक पोजीशन से, ओके, फ्रॉम दिस कार्बन एटम 1 2 3, फ्रॉम दिस कार्बन एटम देयर इज C डबल बॉन्ड O C2H5, ये क्या हो गया, COOR एस्टर का, और एस्टर जब यूज़ होता है COS फंक्शन ग्रुप, तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल, ठीक है। अभी ये जो कंपाउंड है, ट्राई टू नेम दिस कंपाउंड, इज वेरी डिफिकल्ट, लगता है ऐसा है, बट हम लोग उसको नाम दे दें। सबसे पहले इसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप से वो देख लेते हैं। एक फंक्शनल ग्रुप COH एसिड है, साइनाइड है, हाइड्रोक्सी है, एस्टर है, अल्डिहाइड है, मकैप्टो यानी थायोल, अमीडो ग्रुप CONH2 ग्रुप, ऑक्सो कीटोनिक ग्रुप, लेकिन सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी एसिड का है, तो ये बाय डिफॉल्ट फर्स्ट कार्बन हुआ, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज द सेकेंड कार्बन, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 8 9 10 11 12। ओके, ये लग रहा थोड़ा सा स्कैरी है, बट इसको आराम से हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, पहले सारे ग्रुप्स के नेम देखते हैं। अभी 11 पे C डबल बॉन्ड O है, तो सब्स्टिट्यूट होगा तो इसको ऑक्सो बोलेंगे, तो 11th वाला O से चालू होता है, ऑक्सो। 8 पे मकैप्टो यानी M हो गया, 6 पे फॉर्माइल यानी F हो गया, F। नाउ ये क्या है, दिस इज COOR, COR में OR ग्रुप को एल्कोक्सी, मतलब ये एल्कोक्सी, और ये क्या है, कार्बोनिल, तो ये 2 कार्बन का एल्कोक्सी, तो 2 कार्बन ईथ होता है, तो दिस इज इथॉक्सी, दिस इज कार्बोनिल, मतलब ये बेसिकली ई से स्टार्ट होगा, इथॉक्सी कार्बोनिल, याद रखने का। दिस इज 2 कार्बन एटम। देखो ये ग्रुप आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OC2H5, तो OC2H5 इथॉक्सी और ये कार्बोनिल, तो इथॉक्सी कार्बोनिल ई से स्टार्ट होगा। नौ ये आइसोप्रोपाइल है, आपको याद होगा आइसोप्रोपाइल को हम लोग 1 मिथाइल इथाइल, तो आप इसको आइसोप्रोपाइल रखो तो भी चलेगा, 1 मिथाइल इथाइल रखा तो भी चलेगा। तो सपोज मैंने इसको आइसोप्रोपाइल रखा है, I। 5 पे आ गया हाइड्रोक्सो H, और कोई ग्रुप बाकी है, हाँ 7 पे आ गया कार्बामोइल, C से स्टार्ट होता है कार्बामोइल। सेकेंड पे साइनो आ गया, ये भी C से स्टार्ट होता है, बट ये CAR है, ये CY है, तो CA पहले आएगा कार्बोनिल का, CA आता है ये, और ये CY साइनो, साइनो और कार्बाबॉइल में से CA पहले आएगा और साइनो का Y बाद में, क्योंकि दोनों अल्फ़ाबेट पहले कॉमन है, तो Y और A में से A पहले आएगा। तो अभी लेट अस सी के हम लोग इसको नाम कैसा करेंगे। तो सबसे पहले, अच्छा इसमें सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली जाएंगे, तो अल्फ़ाबेटिकली द फर्स्ट विल बी C। अब B से तो हमारा कोई ग्रुप है ही नहीं, तो C में 2 आते हैं, एक होता है
कार्बामोइल और एक होता है CYA साइनाइड का। तो CY बाद में आएगा, पहले कार्बामोइल आएगा, उससे पहले और कोई ग्रुप है, A से कोई ग्रुप आ रहा है, नहीं आ रहा है, B से कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो 7th इज कार्बामोइल CONH2। देखो C डबल बॉन्ड ONH2, सब्स्टिट्यूएंट जब बनेगा अमाइड तो उसको कार्बामोइल बोलेंगे। मतलब वी कैन राइट डाउन 7 कार्बामोइल, कार्बामोइल। देन फिर एक C आएगा साइनो, सेकेंड साइनो। अब E, तो हमारे पास E के लिए इथॉक्सी कार्बोनिल है एस्टर का, और E से कोई और दूसरा नाम है, नहीं आ रहा है। D से कोई नहीं है, तो मैं लिखूंगा अभी इथॉक्सी। E से स्टार्ट हो रहा है 4 पे, तो 4 इथोऑक्सी, इथोऑक्सी कार्बोनिल, ये एस्टर का नाम हो गया, इथॉक्सी कार्बोनिल, ये फिनिश हो गया। E के बाद में F आएगा, तो 6 फॉर्माइल अल्डिहाइड ग्रुप भी चला गया इसके अंदर। H, अभी H से हमारे पास है हाइड्रोक्सी, सो 5 हाइड्रोक्सी I, फिर I आ जाएगा आइसोप्रोपाइल 3 आइसोप्रोपाइल, इसको आप 1 मिथाइल इथाइल भी लिख सकते हैं। एक ग्रुप में भूल गया, थर्ड पे देखो ये CCH5, CCH5 फिनाइल जो P से स्टार्ट होता है, वो बाद में ही आएगा। M से कुछ है, M से है मकैप्टो ग्रुप, C प्रॉपरली मकैप्टो, सो 8 मकैप्टो, ये भी हो गया। O से कोई है ऑक्सो ग्रुप, 11 पे आ रहा है, 11 ऑक्सो, ठीक है। देन उसके बाद में आ जाएगा P, तो फिनाइल किस पे, 3 पे, तो 3 फिनाइल। अब कोई सब्स्टिट्यूएंट बचा नहीं, मकैप्टो, फॉर्माइल, फिनाइल, साइनाइड, आइसोप्रोपाइल, हाइड्रोक्सी, कार्बामोइल, ऑक्सो सब ले लिया। कितने कार्बन का चेन है, बराबर देखो 12 कार्बन का चेन है, मतलब अनडेकेन, रुक जाते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ मालूम, हमेशा सिंप्लिसिटी के लिए ना पहले चेन काउंट करता हूँ 12 का और लिख देता हूँ अनडेकेन। फिर कोई बोलेगा नहीं सर इसमें 2 डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब डबल ट्रिपल जब भी आता है साथ में उसको इनाइन बोलते हैं, लेकिन पहले डबल बॉन्ड लिखते हैं हम लोग। डबल बॉन्ड की पोजीशन 5 और 7 की है, तो डेकेन तो नहीं होगा, वो हो जाएगा डेका, ये डालना पड़ेगा क्योंकि डाइन बनेगा। 5,7, सी प्रॉपरली, 5 पे डबल बॉन्ड, 7 पे डबल बॉन्ड, तो 5,7 डेका डाइन। फिर एक ट्रिपल बॉन्ड 9 पे आ रहा है, तो ई हट के आ जाएगा 9 आइन। फिर ये पूरा कंपाउंड एसिड है, तो जो भी कंपाउंड बचा उसका ई आप किससे रिप्लेस करोगे, OIC एसिड। So this is the entire name of the compound. 7 कार्बामोइल and 2 साइनो, 4 इथॉक्सी कार्बोनिल, 6 फॉर्माइल, 5 हाइड्रोक्सी, 3 आइसोप्रोपाइल, 8 मोकैप्टो, 11 ऑक्सो, 3 फिनाइल अंडेका, 5,7 डाइन, 9 वाइनोइक एसिड। Okay guys, note down this part. Don't be scared. I say you reach to the level, या आ जाओगे तुम इस लेवल पे, कोई ऐसा डिफिकल्टी नहीं है इसके अंदर। ओके, सो पॉज करो,